Unit 2 Medicinal Chemistry topic Prodrug. Prodrug is basically the drug that is inactive at the time of administration, but when it goes inside the body, it converted into its active form. Initially, it is pharmacologically inactive, but when it get inside of our body, it get metabolized and convert into pharmacological active drug. Prodrug basically used to increase the drug delivery pharmacokinetics of the drug and decrease the toxicity of the drug and specific target. For example, if we want the drug to be reached at the specific target, we use prodrug. So drug can't cross the barrier by itself, so it needs a pro-moiety. It is also known as specifier. Like at pro-moiety is basically also the functional group which is attached to the drug. Together they form the prodrug, and it helps to carry the drug inside the barrier. And as we know that drug action can't be shown in the bounded state, so it releases in the free state, and it shows the pharmacological action. This promoiety should be safe and easily administered, and all these property of and the property of this barrier is limited solubility and all. Okay, promoiety means functional group that helps to cross the barrier. So Prodrug also alter the drug solubility and all. It also helps in resistance against the gastric acidity environment and all. It passes through that also, and then further it shows the pharmacological action where it has to show. Application is this: increase the bioavailability, mask the odor, decrease the irritation, increase the chemical solubility and all. Now examples of prodrug is azathioprine. Active form is 6-mercaptopurine. Activation process is non-enzymatic basically. Codeine is prodrug. Is active form is morphine by enzyme CYP2D6 mediated, like, right. L-dopa is converted into dopamine in decarboxylation occur, and it is converted into active form. Prednisolone into prednisolone by the reduction process. So prodrug plus is a drug plus functional group, right. Now liver में क्या होता है, liver में बेसिकली अगर नॉर्मल ड्रग है तो वो लिवर में जाकर क्या करो, इट गेट मेटाबलाइज एंड इट्स ADME डिक्रीज. बट प्रोड्रग में क्या है, इट्स ADM बायोअवेलेबिलिटी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है. नाउ नॉर्मली द ड्रग गोज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और लाइक जैसे हमारी ड्रग है, नॉर्मली हमने लिया, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हुआ इसका और रिसेप्टर पे आया, तो ज़्यादा थेरेपेटिक रिस्पॉन्स शो नहीं किया इसने. बट वहीं अगर इसके साथ प्रोड्रग है तो प्रोड्रग में क्या होता है, प्रोमायोटी प्रेजेंट होती है. तो क्या होता है, अगर एंजाइम आते हैं तो इस प्रोमायोटी पे अटैक करते हैं, बट ड्रग फुली कंसनट्रेशन उसकी रिप्रेजेंट होती है एंड वो क्रॉस कर जाती है रिसेप्टर के थ्रू और ज़्यादा इफेक्ट शो करती है. ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे एम्पेसिलिन और पिवेम्पिसिलिन. ठीक है, एम्पिसिलिन क्या, तो 30-55% ही बायोअवेलेबिलिटी शो करता है, बट पिवेम्पिसिलिन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा 94% तक वो शो करता है हमारी अपनी बायोअवेलेबिलिटी, बिकॉज उसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन पार्किंसन डिसीज़ एज वेल. हमने लिवोडोपा पढ़ा था और काफ़ी प्रिकर्सर ड्रग्स पढ़े थे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्रग, इसमें क्या, कैरियर लिंक प्रोडक्ट जिसमें होता है एक्टिव ड्रग और इनर्ट के बीच में कोवलेंटली लिंक प्रेजेंट होता है, और एक्टिव ड्रग रिलीज बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होते हैं इन दोनों के बीच में, और ड्रग रिलीज होता है एक्टिव फॉर्म में. इसके बाद आता है प्रिकर्सर दीज आर एन. अब बायो प्रिकर्सर क्या होता है, बेसिकली इन वाले को ना ज़रूरत नहीं पड़ती प्रीमोरिटी की. ये इटसेल्फ क्या करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन में बायो प्रिकर्सर बन जाते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशन में होती है और बायो प्रिकर्सर बन जाते हैं, और इट अंडरगो रिडॉक्स एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी एंड इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. फॉर एग्जांपल दिस एक्टिवेट form of drug is inhibits it. What it does, it inhibits the prostaglandin biosynthesis and COX. Now third one is neutral prodrug. It is outer carrier not required. In this, the two drugs that are being given in combination act each carrier to each other. So for example, aspirin and
पेनिसिलिन क्या होता है, बेसिकली हम लोग लेते हैं तो दूसरे कोई कैरियर की तरह काम करते हैं, जैसे बेंजोलाइट प्लस प्रोड्रग और फेनासियाइड, इसमें क्या होता है एस्पिरिन एंड पीसीएम करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, हमें क्या क्या कंसीडरेशन करनी चाहिए प्रोडक्ट को बनाने से पहले कि उसका पर्पस क्या है, एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, किस साइट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी डिसाइड करता है कि कहाँ स्पेसिफाई हमें जगह पे हमें बाहर ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें वो सब का सिलेक्शन देखना पड़ेगा। इसके बाद फिर हमें करता है स्ट्रैटेजीज़ फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, कैरियर हमने जैसे देखा कि कैरियर जो लेकर जाता है उसको प्रोडक्ट को, इसके बारे में। और स्पेसिफायर में हमने बताया कि स्पेसिफिक जगह पे हमें ले जाना है तो स्पेसिफायर यूज़ होता है। इसके बाद लिंकर है, लिंकर हमारा जो लिंक करता है, जैसे हमने देखा ना इसमें लिंकर, इस वाले में कोवेलेंटली लिंक करता है, बाद में हाइड्रोजन क्लीवेज हो जाती है उनकी। उसके बाद फिर हमने देखा है कि इसके बाद फिर हमारा लिंकेज है और एंजाइम, यह लिंकेज अगर अंदर गया तो क्या ब्रेक, हमारे बॉडी के अंदर क्या कौन सा एंजाइम ब्रेक करेगा। जैसे एस्टर है तो कार्बोक्साइल एस्ट्रेज, एलिफेटिक है अगर बॉन्ड एलिफेटिक के बीच में बॉन्ड है तो उसके बाद क्या करेगा, एस्टर हाइड्रोलिसिस करेगा, लाइपेज करेगा, कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये सब ब्रेक करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, ये वाले एंजाइम से ब्रेक करेंगे अगर ये वाली लिंकेज प्रेजेंट होगी तो। अब प्रोडक्ट की हमने एडवांटेज तो पढ़े कि लेस एडवर्स रिएक्शन है, टारगेट साइट पे हम लोग पहुंच जा सकते हैं, डिज़ायर सिनेर्जिस्टिक इफेक्ट मिल जाता है हमें। इसके बाद डिसएडवांटेज है कि फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट और प्रोडक्ट माइट कंज्यूम और कंज्यूम कर सकते हैं, सेल कॉन्स्टिट्यूएंट को भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो